Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to share the lecture number 36 of BT 201. So, our topic is genetic diversity in the ecosystem management. इसका part 1 हम लोग discuss करेंगे. What is genetic diversity? Genetic diversity is a variation at the level of the individual gene in a population. Genetic means कि it's a change in the individual gene in a population. Then हम देखते हैं what is genetic diversity originally mean. इसकी explanation हम नीचे देखते हैं. Genetic diversity means that the population contain most of the possible allele for each particular gene locus. allele का मतलब है it's a particular the position of a gene in a locus is called an allele. Then हम देखते हैं कि why genetic diversity is important. Genetic diversity provides a mechanism for the population to adapt to changing their environments. ये कंसेप्ट हमें नेचुरल सिलेक्शन में भी मिलता है. हम लोग देखते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है. जेनेटिक डाइवर्सिटी चेंज इन द जीन है. जीन में जब भी चेंजिंग आती है उससे डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होती है और यही जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स को, पॉपुलेशंस को उनके नए इन्वायरमेंट में, उनके चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में मदद देती है. देन हम देखते हैं द मोर वेरिएशन द बेटर द better the chance that at least some of the individuals will have an allelic variant that is suited for the new environment and will produce offsprings with the variant that will in return reproduce and continue the population into the subsequent generation. What does it mean? It means that if a genetic diversity occur in one population, it occurs the change in the genes. When there is a change in the gene, it bring more variation in that population, in that a particular individual. और यही variation क्या करती हैं, एक organisms की पॉपुलेशन जो है एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन में मूव होती हैं. और ये इट्स अ हेल्पफुल फॉर एन इंडिविजुअल्स के अगर उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी में चेंजिंग आती है, ये चेंजिंग उसको किसी भी इन्वायरमेंट में रहने में मदद देती है. इफ़ देर इज़ नो जेनेटिक डाइवर्सिटी देन द इंडिविजुअल्स विल नॉट सर्वाइव इन द हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. वाई स्टडी जेनेटिक्स इन द इकोसिस्टम मैनेजमेंट. द लॉस ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी कैन इम्प्लाई द लेक ऑफ द एवोल्यूशन एंड प्री मेच्योर एक्सटिंक्शन. व्हेन देयर इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, जब किसी भी पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, देन देयर विल बी एन एवोल्यूशन. अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है, उनकी जीन्स चेंज नहीं हुई, जीन्स में चेंजिंग नहीं आई, देन देयर विल बी नो एवोल्यूशन. अगर एवोल्यूशन नहीं होगी तो वो जो है पॉपुलेशन वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी. वाई ये एक्सटिंक्ट क्यों होगी? क्योंकि अगर कोई ऐसी इन्वायरमेंटल सिचुएशन आ गई है कि जिसमें ऑर्गेनिजम्स ने सरवाइव नहीं किया क्योंकि उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं चेंज हुई, देन दे विल बी गोइंग टू एक्सटिंक्ट. Fitness decreases with the reduced genetic variation. If there is a genetic variation, then the population will be more fit. And if there is a reduced in the genetic diversity means अगर genetic variation या genetic diversity ये कम हो गई है, then the population, then the particular individual will not be enough fit to survive in that harsh environmental conditions. Then हम देखते हैं जी the population of the endangered species. ऐसी species जिनका हमें खतरा है कि वो फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, नापैद हो जाएंगी. The population of the endangered species are the small, वो बहुत थोड़ी हैं, and tends to lose the genetic diversity. जाहिर सी बात है ये endangered species हैं, ये एक्सटिंक्शन के बहुत करीब हैं. तो इनकी क्या वजह है कि ये एक्सटिंक्ट हो रही हैं? क्योंकि इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है, इन्होंने अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी लूज़ कर दी है. When the genetic variation disappears, the basis for the life on the earth become impoverished. What does it mean? It means that अगर genetic diversity, अगर genetic variations मीन पे exist नहीं करती, all the population
all the organisms on the earth are moving to the extinction. Then move to स्लाइड्स सम यूज़फुल डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी. व्हाट इज़ अ लोकस? द फिजिकल लोकेशन ऑफ द जीन, जहाँ पे जीन होता है, जिस भी पोजीशन पे होता है. ऑफ कोर्स ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, तो जिस पोजीशन पे जीन होता है उसको हम कहते हैं लोकस. अलील वन ऑफ द जीन्स एट अ पर्टिकुलर लोकस. ठीक है जी, अलील और लोकस में आपने डिफरेंस याद रखना है. होमोलोगस टू ऑफ द सेम अलील एट अ गिवन लोकस. होमो मीन सेम, जाइगोस मीन जाइगोट. ठीक है जी, होमो जाइगस टू ऑफ द सेम अलील, दो अलील सेम्स हैं एट अ गिवन लोकस, एक ही लोकस पे दो अलील सेम है, इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस. हेट्रोजाइगस ऑब्वियसली बात है, टू डिफरेंट अलील्स एट अ गिवन लोकस, एट अ गिवन लोकस, एक ही लोकस पे टू डिफरेंट अलील्स, टू डिफरेंट जीन्स एग्जिस्ट कर रही हैं. व्हाट इज़ द फिटनेस? ये ऊपर भी हमने इसको डिस्कस किया था. फिटनेस, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल जीनोटाइप टू द नेक्स्ट जनरेशन. एक होती है जीनोटाइप और एक होती है फिनोटाइप. जीनोटाइप में हम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू द जीन्स. जीनो मीन रिलेटेड टू द जीन्स. ये जीनोटाइप व्हेन इट इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन देन इट इज कॉल्ड एज फिटनेस. नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ द लेवल ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी के लेवल्स कितने हैं विद इन द इंडिविजुअल? ये एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स में भी हो सकती है. अमंग द इंडिविजुअल विद इन द सेम पॉपुलेशन, सेम पॉपुलेशन में कई इंडिविजुअल में हो सकती है. एंड अमंग द पॉपुलेशन, और सारी पॉपुलेशन में हो सकती है. फर्स्ट है विद इन द इंडिविजुअल्स. Every diploid organism had a duplicated genetic information from its mother and the father. What does it mean? It means a zygote that formed from the mother and the father. It has the information both from the egg and the sperm. It has the same type of the information, but specific forms may differ. It has the same information that its parent, its mother and the father has. It has the same information that passes from one generation to other generation. Then हम देखते हैं among the individuals within the population, different individuals carry the different genetic information. The sum of the variation of an interbreeding population is called the gene pool. It's a most important definition. What is gene pool? When there is a variation of an interbreeding population, जब किसी भी इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में वेरिएशन आ जाती है. वेरिएशन किस जगह पे आती है? जीन लेवल पे वेरिएशन आती है. इट्स कॉल्ड द जीन पोल. देन मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट हम देखते हैं among the population, different genes pool among the population. एक population में different genes pool भी exist कर सकते हैं. And then it's the most important definition. What is isolation? Isolation is an most important factor responsible for among the population genetic diversity. Isolation का मतलब है एक population है या one or two population that are living in a particular area, they become isolated. Why they become isolated? Because of the natural or the man-made barriers. कोई भी पॉपुलेशन हो सकती है वो आइसोलेटेड हो गई है बिकॉज ऑफ द नेचुरल और द मैन मेड बैरियर्स. नेचुरल बैरियर्स कौन से हो सकते हैं? फ्लड हो सकता है, फॉरेस्ट फायर हो सकती है, उसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो आइसोलेटेड हो गई है. और द मैन मेड बैरियर्स जैसे कि हम लोग ने पीछे डिस्कस किया कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं. डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत से प्लांट स्पीशीज, बहुत से एनिमल स्पीशीज, दे बिकम आइसोलेटेड. And this isolation can lead to the local adaptation. And जो population वो isolated हुई है वो become adapted to the local adaptation. Natural and the natural local adaptation includes the example of the mistletoe species in the Argentina and the Chile. ये एग्जाम्पल दी हुई है. इट्स अ प्लांट स्पेशीज डेट आर ग्रोन ऑन द लार्ज एंड द बिग फॉरेस्ट, बिग ट्रीज. ये ऐसी एक हर्ब होती है, एक जड़ी बूटी होती है जो कि किसी भी ट्री के ऊपर जो है ना वो इट्स ग्रोज ऑन दैट ट्री. और ये कहाँ पे पाई जाती हैं? इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इन द अर्जेंटीना एंड काइल. अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ अमंग द पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी स्पेसिएशन. एंड देन आइसोलेशन का जो तीसरा इफेक्ट है वो क्या होता है? इट इफेक्ट्स द वेरिएबिलिटी डेट लेड टू द स्पेसिएशन.
देन हम देखते हैं व्हाट इज़ द heterozygosity. It's the most important short question. In an individual organism is a state of possessing the different alleles at a given locus in regard to a given character. इसमें हम देखते हैं जी two different alleles exist as a same locus. At the population level, the fraction of the individuals in a population that are heterozygous for a particular locus. When there is a heterozygosity condition occurs, it has two positive effect. It often positively correlated with the fitness. Heterozygosity, it is the directly correlated with the fitness, or it is a positively correlated with the fitness. When there is a heterozygous condition, then organisms will be more fit to that environment. And then heterozygosity, second point हम देखते हैं heterozygosity positively correlated with the population size. It's decline in the small population. When our organism is referred to as heterozygous or being heterozygous for a specific gene, it means that organisms carries two different variant of that allele on two corresponding chromosome. इसका क्या मतलब है कि जी जब भी हम heterozygous को डिफाइन करते हैं या heterozygous को डिफाइन करते हैं तो हम यही कहते हैं कि टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे टू डिफरेंट जीन एग्जिस्ट करती हैं. इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं जी, heterozygous. Heterozygosity refers to both the state of being a heterozygote but more commonly in the population genetics. ये इसको हम क्या कहते हैं, heterozygosity किस स्टेट को जाहिर करती है, heterozygosity किस स्टेट को जाहिर करती है, heterozygote. It's the most commonly used term in the population genetics to the fraction of the individual in the population that are heterozygous for that locus. ये था जी आपका लेक्चर नंबर 36. ये था जी इसका पार्ट नंबर 1. इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है. अभी सिर्फ हमने ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को ही एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जी व्हाट हैपन व्हेन देयर इज़ अ लॉस इन द जेनेटिक डाइवर्सिटी. ये सारी स्लाइड्स जो मैंने आपसे शेयर की हैं, ये सारी स्लाइड्स जेनेटिक डाइवर्सिटी को डिफ़ाइन करती हैं. आपने इसको शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है और लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करना है. थैंक्स फॉर वाचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.